Okay, let us start exercise 2.4. Question number 1. First part is question is determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor. First part in homework we will do second part. Second part is x4 polynomial px is equal to x4 plus x cube plus x square plus x plus 1. Clear? हमें चेक करना है whether x plus 1 is a factor of this polynomial or not. For that, first we find the zero of the given polynomial. X plus 1 equal to 0. This implies x is equal to 1 minus 1. So minus 1 is the 0. Now we will put x minus 1 in the given polynomial. P of minus 1 minus 1 4 minus 1 cube minus 1 square minus 1 plus 1 1 minus 1 का क्यूब minus 1 आएगा plus minus 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 1 square is plus 1 plus minus minus 1 plus 1 cancel out हो जाएंगे. So what we get 1 which is not equal to 0. If it is 0, then yes, x plus 1 is a factor. Now this is not equal to 0. Therefore, we will write x plus 1 is not a factor of polynomial p of x. Clear? Same way you have to do the first part of this question. Note down this question. Again, like when you're doing these questions, ma'am, p के साथ, why do we always use px? Because the polynomial in x, अगर polynomial y में होगी, we will write p of y. अगर कोई भी जिस वेरिएबल में polynomial होगी, वो वेरिएबल हम यहाँ लिखेंगे. So मैम, जो भी हमारे पास polynomials होंगे, वो हमेशा p के साथ कोई ना कोई वेरिएबल होगा, p ही होगा. like कोई भी सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होगा वो. ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है. दिस रिप्रेजेंट दैट दिस पॉलिनोमियल इज इन वेरिएबल x. ये रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके मैम. ओके. यस मैम. So this is our polynomial. Third part homework में है. Now we will do the second fourth part. Again 0 same रहेगी. X plus 1 equal to 0. This implies x is equal to minus 1. This is the 0 of the given polynomial. So we have to check x plus 1 is a factor of not. Put x minus 1 cube minus of minus 1 square minus 2 plus root 2 minus 1 plus root 2. Clear? Now you have to put the value. Minus 1 cube is minus 1, minus 1 square is 1, which is equal to minus 1, minus minus plus हो जाएंगे ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट एज इट इज रह जाएगी प्लस रूट 2 which is equal to minus 2 plus 2 root 2 minus 2 plus 2 cancel हो गए. We get 2 root 2 which is not equal to 0. Therefore x plus 1 is not a factor of polynomial px. Therefore x plus 1 is not a factor of polynomial px. Clear? Any doubt regarding this question? Note down these questions. Second and first and third part in homework. इसमें क्या है? minus 2 plus root 2 into minus 1. ये मल्टीप्लीकेशन में है minus 1. सॉरी, ये minus 1 मल्टीप्लीकेशन में है और इस ब्रैकेट के बाद भी मल्टीप्लाई का साइन है. There are two ways to solve this question. या तो आप इस ब्रैकेट को ओपन करके पहले इसमें साइन चेंज कर दो दोनों के, then again multiply it with minus 1, you get the फिर साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि minus 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और
सेकेंड, अगर ये माइनस है, इट मींस ये माइनस मींस माइनस वन, ये कितना हो जाएगा +1। अब +1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट सेम रहेगी 2 + रूट 2। क्लियर वंश? Yes, ma'am. Okay. Second question is use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases or not. First part is px is equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1 and gx is x plus 1. अब हमें चेक करना है gx is a factor of px or not. For that, first put gx is equal to 0. From here you get x is equal to -1. Now put x minus 1 in the polynomial. Px 2 minus 1 cube minus 1 square minus 2x minus 1 minus 1. Minus 1 cube is minus, so it is -2. Minus 1 square is plus 1. Minus 2 into minus 1 is +2, then -1. के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, ऑपोजिट साइन में, so it is 0. Since it is 0, therefore we can say gx is a factor of px. Therefore gx is a factor of px. Clear? It's second and third part in homework. Simple questions है, आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. You can do it easily. Second and third in homework. Now next question, question number 3. Find the value of k if x minus 1 is a factor of the given polynomial in each of the following cases. अब फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में हमें चेक करने के लिए कहा गया था कि चेक करो कि वो फैक्टर है कि नहीं है. Now next question is factor is given, we have to find the value of k. So write down question number 3 first part. X minus 1 is a factor of, write down, since x minus 1 is a factor of polynomial px, therefore p of 1 is equal to 0. p of 1 कैसे आया? ये इसका फैक्टर है, तो इसकी 0 क्या आएगी? 0 को आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, x minus 1 equal to 0, so x is equal to 1. मीन्स जब हम x को 1 पुट करेंगे तब वो उसको सेटिस्फाई करेगा p of 1 equal to 0. क्लियर? तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है, पहले आपने जो फैक्टर दिया है वहां से 0 फाइंड आउट कर लेनी है. 0 फाइंड आउट करने, नो नीड टू शो इट, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है. x की वैल्यू कितनी आ गई? 1. सो p of 1 is equal to 0 क्योंकि x minus 1 उसका फैक्टर है. तो नेक्स्ट इज नाउ पुट x1 in the given polynomial. Polynomial हमारे पास क्या है? x square plus x plus k. x को सब्स्टिट्यूट करो with 1. So 1 plus k equal to 0. So 2 plus k equal to 0. So k is equal to -2. So value of k is -2. Second part. Polynomial px is equal to 2x square plus kx plus root 2. Again you will write, since x minus 1 is a factor of polynomial px, therefore p of 1 is equal to 0. So 2 1 square plus k into 1 plus root 2 is equal to 0. So 2 plus k plus root 2 is equal to 0. So k is -2 minus root 2. Now third part.
third part, polynomial px is kx square plus root 2x plus 1. Again you will write, since x minus 1 is a factor of px, therefore p of 1 is equal to 0. So k1 square plus root 2 1 plus 1 is equal to 0. So k plus root 2 plus 1 equal to 0. So k is minus 1 minus root 2. Next, fourth is kx square minus 3x plus k. Again, x minus 1 is a factor. Since x minus 1 is a factor of px, therefore p of 1 is equal to 0. So k1 square minus 3x1 plus k equal to 0. So k minus 3 plus k is equal to 0. K plus k is 2k. Minus 3 is equal to 0. So k is equal to 3 by 2. K is equal to 3 by 2. Note down all the parts, and if you have any doubt you can ask. In third part की statement में correction कर लो. In statement it is kx square minus 2 root x. So here it is minus minus minus, तो ये plus बन जाएगा. Do this correction in third part. Now fourth question is factorize the following polynomials. Can anybody tell me how can we factorize the quadratic polynomial? आपने 8th class में पढ़ा हुआ है. How can we find the factors of quadratic polynomial? First is 12x square minus 7x plus 1. Raise your hand. Yes, Kashish. Ma'am, by splitting the middle term. Yes, by splitting the middle terms, we can find the factors of the quadratic polynomial. Now, split second term is minus 7. First, we multiply the coefficient of x square with constant term. 12 into 1 कितना आएगा? It is 12. और जो सेंटर वाली टर्म है वो क्या है? -7. तो हमें -7 को इस तरह स्प्लिट करना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या बन जाए? 12 plus 12. So we can write it as minus 4x minus 3x. When you multiply minus 4 into minus 3, what you get? 12. And when you add it minus 4 plus of minus 3, you get minus 7. Clear? ये आपने already 8th class में पढ़ा हुआ है. Now we take the pairing and then take out the common factor. 12 and 4. 4 common आ जाएगा. X square and x. X has a common factor. So what is left? 3x minus 1. यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन -1 कॉमन आ जाएगा. So 3x minus 1. ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए. क्लियर? तो यहाँ से नेगेटिव बार ले लेंगे. We need plus 3x minus 1. तो उसके लिए हमें नेगेटिव बार लेना पड़ेगा -1. अब टोटल पॉलिनोमियल में से 3x minus 1 कॉमन आ गया. 4x minus 1 बच जाएगा. 4x minus 1. So these are the two factors of the given polynomial. The second part, 2x square plus 7x plus 3. अब मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए? When we multiply 2 into 3 6 और दो नंबर्स को जब प्लस करेंगे क्या चाहिए? 7. 2 into 3 6 and when we multiply we get the central term 7. And make sure जब भी आपने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है फैक्टराइज के लिए, उसकी जो वेरिएबल्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर, पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए. इन केस यहाँ पे 3 पहले होता, 7x बाद में होता, तो हम पहले इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Clear? So now two numbers when we multiply we get 7. 6x into 1x 7x. 6 into 1 is 6.
6x into 1x is 6x square, तो मल्टीप्लाई करके 6 आ गया और प्लस करके 7. नाउ अगेन पेयरिंग, यहाँ 2 और 6 में से 2 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर और x में से x कॉमन आ गया. व्हाट इज लेफ्ट? x plus 3. x plus 3, इसमें से कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है, सो वी विल राइट 1 x plus 3. तो टोटल में से x plus 3 कॉमन आ जाएगा एंड 2x plus 1. x plus 3 कॉमन आ गया, 2x plus 1. Any doubt in these two questions, in these two parts? No one? Okay. Now next, third part. Polynomial is 6x square plus 5x minus 6. Now here what we want, when we multiply, we get minus 36, minus 6 into 6, minus 36, and when we add those two numbers, what do we get? Plus 5. Can anybody tell me what should be the numbers? सेंटर टर्म को कैसे स्प्लिट करें? Raise your hand. Yes, Avidya. Ma'am, -6 into 6 and -6 plus 1. Avidya, please repeat. Ma'am, -6 into 6 and हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास -36 आए एंड व्हेन वी ऐड दोस टू नंबर्स वी गेट 5. मनकीरत, +6 plus 6x minus 5x. मनकीरत प्लीज Sorry, रिपीट. plus 6x minus x प्लस 6 एंड minus x. नो. स्माइरा, 6x square minus 4x plus 9x minus 6. यस, हमें चाहिए नंबर 6x स्क्वायर प्लस 9. You can write like this, -9 and plus 9x minus 4x और minus 4x plus 9x. अब इन दोनों को आप ऐड करो. 9 प्लस ऑफ -4, व्हाट यू गेट? 5. 9 minus 4, सेंटर वाली टर्म 5 आ गई. और जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे 9 into -4, व्हाट यू गेट? -36. वो 36 कैसे आएगा? कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके. कांस्टेंट टर्म क्या है? -6. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 6. सो -6 into 6 इज -36. और सेंट्रल टर्म क्या है? ऐड करके 5 आना चाहिए हमारे पास. ठीक है, तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -36 आए और प्लस करके क्या है? 5. सो 9 minus 4 कितना आ गया? 5. और जब 9 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? -36. क्लियर? Any doubt regarding this question? मानव आपने हाथ खड़ा किया है. Do you have any doubt or you want to answer? No. No doubt. Okay then. Now pairing 6 और 9 में से 3 फैक्टर कॉमन आ जाएगा. x स्क्वायर और x में से जो लोएस्ट पावर वाला वेरिएबल है वो कॉमन आएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x plus 3. नेगेटिव नेगेटिव दोनों ही है तो नेगेटिव कॉमन आ जाएगा. 4 और 6 में से फैक्टर 2 इज कॉमन, तो क्या बचेगा हमारे पास? 2x plus 3. सो टोटल में से 2x plus 3 कॉमन एंड बचा क्या हमारे पास? 3x minus 2. क्लियर? नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 3x square minus x minus 4. Okay, now who will tell? मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए? कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे. मल्टीप्लाई करके हमारे पास आना चाहिए -12 और ऐड करके हम दोनों नंबर्स को क्या आना चाहिए? x का कोएफिशिएंट क्या है? -1. सेंट्रल टर्म -1. क्लियर? कशिश ने हाथ खड़ा किया, एनी हाथ नहीं किया. ओके, स्माइरा,
अभी अस्मारा आंसर नहीं करोगे. Any other student? How can we split the middle term? Yes, Ishita. मैम -4x into 3x Into नहीं बोलना, plus 3x. ठीक है? plus 3. So it is 3x square minus 4x plus 3x minus 4. -4 plus 3 कितना आ जाएगा? -1. और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे -4 into 3 कितना आ जाएगा? -12. Clear? Now grouping. फर्स्ट 2 का ग्रुप बन जाएगा, लास्ट 2 का. 3 और 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा. x स्क्वायर और x में से x कॉमन. What we get? 3x minus 4. इन दोनों में से कोई भी टर्म फैक्टर कॉमन नहीं है तो we will write 1. So 3x minus 4. 3x minus 4 टोटल में से कॉमन आ जाएगा. So we get 3x minus 4 and x plus 1 are the two factors of the given quadratic. Any doubt? Yes, Haridya? नो मैम, वो आंसर करने के लिए पहले किया था. Okay, Haridya. Ishita, yes? मैम माय डाउट वाज दैट कि हम आपने बोला था कि डिग्रीज के अकॉर्डिंग हमने प्लेस करना है. हाँ हाँ. वो कैसे? वो इसका मैंने कहा था आपको. लाइक सपोज आपके पास ये पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने लिखा है 6x स्क्वायर प्लस 5x. सपोज आपके पास क्वेश्चन में आ जाता 5x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6. ठीक है, तो आप फैक्टराइज करने से पहले इसको अरेंज करोगे. 6x स्क्वायर की टर्म पहले आएगी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स. 6x स्क्वायर की टर्म पहले आएगी, फिर 5x आएगा, फिर 6 आएगा. हम विजिबल नहीं है. विजिबल नहीं है? अब विजिबल है? यस मैम. ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे सपोज मैंने लिखा है 5x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6. तो इसको जब आपने स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिट करना है उससे पहले आपको इसको अरेंज करना है. पहले 6x स्क्वायर की टर्म आएगी विद साइन. सपोज यहाँ पे नेगेटिव होता तो माइनस 6x स्क्वायर पहले आता. ठीक है, विद साइन चेंज करना है आपने. 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6. राइट? यस. तो मैम दिस इज ओनली इन द केस ऑफ फैक्टराइजेशन. जब भी हम करते हैं कि हमने इसे फैक्टराइज करना है तभी हम इसे डिग्री के हिसाब से विल पुट देम. बिल्कुल. जब आप चेक करते हो कि वेदर दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, बट जब आपने फैक्टराइज करना है तो आपको अरेंज करना है उसको पहले. ओके मैम. ओके. अब इसकी डिवीजन के लिए सबसे पहले आपने डिविडेंड 4x cube minus 3x minus 1 this have to divided by x minus 1. अब यहाँ भी आपने ध्यान रखना है पावर्स शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. जिसको डिवाइड कर रहे हो डिविडेंड एज वेल एज डिवाइजर, इसकी पावर्स भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. ये नहीं -1 प्लस x है, इट इज x minus 1. ठीक है, सो पहले आपको उसकी पावर्स के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, ध्यान से समझना क्वेश्चन. फर्स्ट टर्म ऑफ दिस इज 3x4. फर्स्ट टर्म क्या है? 3x4. यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? x. इन दोनों को डिवाइड कर देंगे. 3x4 डिवाइडेड बाय x, ये कितना आ जाएगा? 3x क्यूब. ये तो 8 में पढ़ा हुआ है आपने पॉलिनोमियल्स की डिवीजन इन वन टर्म. पावर यहाँ पे 4 है, ये पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी. 3 आ गया, ये 3 एज इट इज रह जाएगा. सो 3x क्यूब. अभी नोट मत करो, पहले समझ लो. ठीक है, आप बाद में सेशन को दोबारा देख के भी नोट कर सकते हो. सो इट इज क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास? 3x क्यूब. क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग. डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड विद द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, यू गेट द क्वोशिएंट. दोनों की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके हमारे पास क्वोशिएंट आ जाए. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब इस क्वेश्चन को आपको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है. 3x क्यूब इंटू x कितना आ गया? 3x4. 3x क्यूब इंटू -1 कितना आ जाएगा? -3x क्यूब. दोनों से सेपरेट मल्टीप्लाई करोगे. 3x क्यूब इंटू x, वो तो ऑब्वियसली सेम ही आएगा क्योंकि हमने डिवाइड भी सेम टर्म्स में किया था. 3x क्यूब इंटू x इज 3x4. 3x cube into -1 is -3x cube. Clear?
नाउ चेंज द साइन, इनके साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ पे प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, अगर माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस। क्लियर? नाउ प्लस, अब हमने नए साइन के साथ कैलकुलेशन करनी है। प्लस 3x पावर 4 माइनस 3x पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के ऑपोजिट साइंस है। यहाँ पे -4 और यहाँ पे +3, पुराने वाला साइन नहीं चेक करना आपने। वी विल डू कैलकुलेशन विद न्यू साइन। -4 + 3 -1 आएगा, माइनस, और ये वेरिएबल साथ में एज इट इज -x³ -1x³ आना था, 1 आप ना भी लिखो, सो -x³। और ये ध्यान रखना है जब आप टर्म्स लिख रहे हो मल्टीप्लाई करके, क्यूब के नीचे क्यूब वाली टर्म आनी चाहिए, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए, एक्स के नीचे एक्स की टर्म आनी चाहिए। ये नहीं क्यूब के नीचे आप स्क्वायर की टर्म लिख रहे हो तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर? तो बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज नोट कर लेंगे, -3x -1। अगेन सेम प्रोसीजर दोबारा से स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट टर्म ऑफ दिस -x³ डिवाइडेड विद द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइड। अगेन सेम जैसे पहले किया था, सेम स्टेप दोबारा रिपीट करोगे। इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -x²। अब जो -x² आया वो हमारे क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा -x²। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज -x² को हम इन दोनों से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। -x² into x, अब नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी। -x² into x is -x³, -x² into -1 is +x², बट यहाँ पे x² की टर्म मिसिंग है तो हम उस +x² को लास्ट में लिखेंगे। अगर तो x² की टर्म होती तो हम x² के नीचे x² वाली टर्म लिखते, बट नाउ हियर x टर्म ऑफ x² is missing, so we will write in the end x²। Now again change the sign, minus plus plus minus cancel out हो गए। अब जब आपने नेक्स्ट स्टेप लिखना है तो x² की टर्म को पहले लिखोगे, -x² -3x -1 as it is। Clear? Now again same procedure, -x² divided by x, what you get is -x, ये -x रह जाएगा, so -x क्वेश्चन का पार्ट बन गया, -x into x is